So welcome back. So last class we started with the Java 8 features. Can you even just list down what are the Java 8 features we have seen, Pushkar? Mm, Okay, default methods. Akshay, that is not Java 8 feature. Functional interface. So functional interface, lambda expression, method reference, then default methods, static methods. There are two more things, optional and stream API. So that is something we will be covering later. Okay. So what is an anonymous class? Does not contain any name. And why do we use such class? Why are we using anonymous class? To make the code concise and smaller. Okay. So what is the structure to create an anonymous class? Since the class is not having name, so we combine class definition and object creation together. एंड उसका नाम भी नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको पेरेंट का नाम देते हैं पेरेंट का टाइप से सो वी विल हैव पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास सो चाइल्ड क्लास और सब क्लास विल ऑलवेज बी अ मतलब वो एनोनिमस क्लास विल बी अ सब क्लास ऑफ आइदर कॉन्क्रीट क्लास abstract class or an interface. So that is the use. Then we talked about marker interface also. Anyone knows what is a marker interface? Mhm. Marker interface is an empty interface. Okay. Serializable, clonable, auto closable. Okay. So what is the use of such like marker interface for marking purpose? So what do you mean by marking purpose? So identify the objects for a particular processing. To identify the objects for a particular processing. Let's say मुझे कोई object file में save करना है, but we cannot save the any object in the file. So object must be of type serializable. Let's say I want to create a copy of an object using existing object. So there we need clonable type. So हमें एक ऑब्जेक्ट का यूज करके एक नया ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है बट फॉर दैट पर्पस ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ टाइप समथिंग क्लोनेबल तो अगर आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन देन वी यूज मार्कर इंटरफेस सो व्हाट्स द फंक्शनल इंटरफेस interface which contains single abstract method and there is no restriction about static and default methods any number of static methods and any number of default methods. So what all things we can write as part of a normal interface? Normal interface में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? Till Java 7 abstract methods. So variables from Java 8 variables will be public, static, final. Methods by default will be abstract, static method, default method, and nested classes, static nested classes. Okay, perfect. And what is the use of functional interface annotation? We use for readability purpose. If it is it mandatory? No. But if it is written, what is then? What is mandatory then?
then that particular interface must contain single abstract method. That interface must contain single, otherwise it will start giving compile time error. ठीक है. So can you give me some examples of functional interfaces which are already defined, predefined? कौन सा? Running, function, predicate, consumer, by function, by predicate, by consumer, by supplier is also there, comparator, operator is also there. So I asked you guys to list down 15 different functional interfaces which are already defined, and what is the method signature inside that. So how many of you have prepared that? Only one? Che. Okay. Can you tell me? Runnable contains run method which does not accept any input, does not return anything. So void run. That's it. That we already covered. Comparator contains one method, that is compare, I think. Okay. Okay. It takes how many inputs? Two inputs and returns integer. What else? Predicate. Predicate has method test that returns boolean type and it can accept any type of input. Then function accepts input, any type of input, but does not return anything. What is the method name? Apply. Apply. T is a type. That means any type of data that can apply. What else? Consumer. So consumer. Okay. Function return करता है कुछ ना कुछ. But consumer accepts only thing but does not return anything. Supplier does not accept anything but provides some value. So go through that. आज फिर से एक बार वो questions करो. Go through the set of interfaces which are there, predefined functional interfaces. What is the method signature? वो आपको बाद में काम आएगा collection framework के time, stream API जब आप पढ़ोगे तब. So that time it is necessary. So last class we talked about anonymous class. We did a lot of question answers, almost 45 minutes we did on OOPS. Then functional interface, it is one of the Java 8 feature. These are the set of things we talk about. And what are the different ways to create a subclass of a functional interface? Traditional way, anonymous class, lambda expression, and method reference. Okay. So this table also we talked about. So if you want to create subclass of different classes, concrete class के लिए abstract class and normal class आपके पास दो तरीके हैं, traditional and anonymous. मतलब सबके लिए दो तरीके तो है, but functional interface के लिए आपके पास चार तरीके हैं. Traditional way, anonymous class, lambda expression and method reference. ये चार तरीके आपके पास हैं. Then we also talked about example. I hope this makes sense. यहाँ तक clear है सबको? So let's start with the next component, that is lambda expression. अब ये बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये देखने मिलेगा. कोई इसको एरो फंक्शन बोलता है, कोई लैम्बडा एक्सप्रेशन, या अलग अलग नाम है, बट अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने मिलेगा. सो दिस इज फॉर मेकिंग द कोड कंसाइज. दिस इज फॉर मेकिंग द कोड concise. That is the ultimate goal of using such thing. So what is the lambda expression? Can you tell me? We have seen that little bit. So what is the of lambda expression?
फंक्शनल इंटरफेस इफ यू रिमेंबर, सो फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट करने के लिए क्या क्या तरीके आपके पास? ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस क्लास, lambda expression and method reference, right? So you can also say it is used to implement, it is used to implement only functional interface. किसके लिए? It is used to implement only functional interfaces. किस तरीके से? In clear, concise manner. इस तरीके से आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से, कंसाइज तरीके से आप इंप्लीमेंट करते हो। कैसे? फंक्शनल इंटरफेस ओनली, the word is only. It is used to implement only functional interfaces in a clear, concise manner. एक लाइन में आप प्लीज आप ये भी बता देते हो, दैट इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। आप मुझे बताओ फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना। सो वी इंप्लीमेंट एन इंटरफेस, राइट? वी इंप्लीमेंट इंटरफेसेस. So whenever one class tries to implement an interface or only functional interface, so what must be there? What is the job of that particular class, subclass? एक क्लास है जो इंप्लीमेंट करना है फंक्शनल इंटरफेस को. think of a traditional way. What we do, one class is trying to implement one functional interface. So what is the that particular concrete class? How many abstract methods? Only one. So अगर आप कोई फंक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो, then you have to override that single abstract method. So how many abstract methods we are going to override? Only one. Only one abstract method we are going to override. So ध्यान रखना. So implementing a functional interface मतलब क्या होता है? Means overriding how many methods? Who is there? Overriding how many methods? ये तो क्लियर है आपको. अगर आप कोई इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो, सिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन इंटरफेस, देन हाउ मेनी थिंग्स यू आर गोइंग टू ओवरराइड? ओनली वन थिंग. सो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जब मैं फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास बनाऊंगा तो उसके अंदर कितनी मेथड्स होगी? एक ही मेथड होगी. तो दैट्स द रीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द लैम्बडा एक्सप्रेशन कम्स इनटू पिक्चर. सो लैम्बडा एक्सप्रेशन इज ए फंक्शन, is a function or a method which does not have, lambda expression is a function which does not have name, return type. नाम नहीं लिखते आप, रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, देन उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं लिखते आप, then access modifier also you do not write. Lambda expression is a function which does not have name, return type, access specifier, access modifier. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि if you are creating a subclass of a functional interface, you are going to override only one method. तो मेथड का नाम आपको कैसे पता चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड आप कुछ ना कुछ रेफरेंस लिखोगे, राइट? यू विल राइट पेरेंट क्लास रेफरेंस, parent class reference, child class object. That is left based on left hand side type. You will know कि कौन सा टाइप का इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, उसके अंदर कौन सी मेथड होगी. तो नाम लिखने की भी जरूरत
नहीं है आपको। तो जब आप लैम्बडा लिख रहे हो, सो व्हाट इज दैट? सो राइटिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब आप क्या लिख रहे हो? फंक्शन लिख रहे हो आप। क्या लिख रहे हो आप? यू आर राइटिंग अ फंक्शन। उसका कोई नाम नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। सो राइटिंग अ lambda expression is simply writing a function without name, without return type, without access specifier, access modifier। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पेरेंट क्लास रेफरेंस होने वाले आपका। यूजिंग दैट वी आर गोइंग टू होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो lambda expression is kind of a complete package, a class definition, उसके अंदर मेथड ओवरराइड किया है, एवरीथिंग इज देयर, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, एवरीथिंग। सो राइटिंग lambda expression मीन्स क्या कर रहे हो आप? ओवरराइडिंग कितना मेथड्स? सिंगल abstract method। क्या कर रहे हो आप? अगर आप लैम्बडा लिख रहे हो, यू आर सिंपली राइटिंग, यू आर ओवरराइडिंग अ सिंगल abstract method इन अ कंसाइज वे। तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में क्या होगा? बहुत सारी चीजें, सब क्लास होगा, उसके अंदर ओवरराइड होगा मेथड, उसका ऑब्जेक्ट बना होगा। सो यू विल अंडरस्टैंड। सो लेफ्ट हैंड साइड वजह से यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट इज द सिंटैक्स? रेफरेंस किस कौन से टाइप का होगा? और रेफरेंस पेरेंट होगा तो, लेकिन पेरेंट कौन होगा? होगा तो रेफरेंस यहां पर क्या लिखना होगा? कौन सा इंटरफेस? ओनली फंक्शनल इंटरफेस उसका नाम होगा यहां पर। ठीक। अब सिंटैक्स इक्वल टू, सो फंक्शनल इंटरफेस रेफरेंस। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फंक्शनल इंटरफेस। तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? ये तो पेरेंट क्लास हो गया। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो। तो सिमिलरली फंक्शनल इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम? चाइल्ड क्लास का सब क्लास। तो राइट हैंड साइड में कौन होने वाला है? सब क्लास। एक सब क्लास होगा, एक क्लास होगा, उसके अंदर एक मेथड ओवरराइड होगी, और उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा। सो राइट हैंड साइड में आपको एक ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? ठीक है। तो यहां पर सिंटैक्स कैसे लिखना है, ये पूरा काम आपको ऑलरेडी मैंने कल बताया था। इफ यू लुक एट दिस, सो वी हैव दिस फंक्शनल इंटरफेस। तो राइट हैंड साइड में आपको एक ही चीज समझ में आ रहा है, क्या है? राइट हैंड साइड व्हाट इज देयर? ऑब्जेक्ट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसका सिंटैक्स देखो यहां पर। सो व्हाट आर वी डूइंग? ये मेथड इनपुट पैरामीटर्स, मेथड इनपुट पैरामीटर्स मैंडेटरी है क्या? नहीं। देन मेथड बॉडी। अब मेथड बॉडी और इनपुट पैरामीटर्स, इनको आप ज्वाइन करते हो यूजिंग दिस एरो सिंबल। और ये आपका मेथड बॉडी किसका? किसका? अरे मेथड बॉडी क्लास का थोड़ी होता है। सो मेथड बॉडी कौन से पर्टिकुलर? मेथड बॉडी ऑफ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये आपका सिंपल सा सिंटैक्स। भी अगर आपको समझना है तो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है। सो व्हाट इज राइट हैंड साइड? ये लाइन क्या आपको बता रहा है? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लाइन ऑल अबाउट? ये क्या बता रहा है? कैन यू टेल मी बिगर पिक्चर? अभी पूरा पिक्चर बताओ मुझे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है?
LHS क्या है आपका, बताओ। LHS पेरेंट क्लास रेफरेंस, पेरेंट क्लास रेफरेंस, परफेक्ट। विच इज ए फंक्शनल इंटरफेस, विच इज ए परफेक्ट। ये तो क्लियर है। राइट हैंड साइड मुझे बताओ अभी क्या है राइट हैंड साइड में। सब क्लास डेफिनेशन विद मेथड ओवररिडन, क्या है राइट हैंड साइड में, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सब क्लास बना है विद सब क्लास डेफिनेशन विद मेथड ओवररिडन एंड सब क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये सब कुछ आपका ये वाला पार्ट है राइट हैंड साइड। राइट, ऑनलाइन। सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आई एम क्रिएटिंग अ इंटरफेस, you can take any, let's say processor, ठीक। अब ये मेरा इंटरफेस है। नाउ कैन आई कॉल दिस एज अ फंक्शनल इंटरफेस इमीडिएटली? नो। सो दिस एनोटेशन क्या बोल रहा है, कितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू सिंपली राइट अ मेथड नेम which accepts a number. Now what is the type of this particular method? क्या टाइप है इस पर्टिकुलर मेथड का, कौन से टाइप की मेथड है? बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर मेथड कैसी होती है? पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो स्टैटिक किधर से आया? स्टैटिक क्या होता है? बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल, वेरिएबल की बात हो रही है। मेथड कैसी है बाय डिफॉल्ट? यहां पर आपने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ऑलरेडी यहां पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, दिस इज ऑलरेडी रिटन, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रिटन, ओवरराइट करने की जरूरत नहीं आपको यहां पर। क्लियर? अब ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस है, दिस इज माय फंक्शनल इंटरफेस। अब इसका मुझे सब क्लास क्रिएट करना है। तो अभी हम पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जहां से आप बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो उसको हम छोटा करते करते आगे जाएंगे। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू क्रिएट? क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस यूजिंग ट्रेडिशनल वे। अब ये तो आपको पता होगा, दिस इज समथिंग ऑलरेडी वी हैव सीन एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, हाउ डू आई क्रिएट दैट? क्लास, कोई सब क्लास क्रिएट करते हो आप, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग ए स्क्वायर इंप्लीमेंट्स प्रोसेसर। अब ये एरर क्यों दे रहा है पुष्कर? व्हाई आर वी गेटिंग दिस एरर? क्या ओवरराइड करना है हमें? ये सम्राट, इसके अंदर कितनी मेथड्स हैं? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये कैसा टाइप है? कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये वाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर ओवरराइड करनी पड़ेगी। एक तो इसको हटाओ या इसको यहाँ पर ओवरराइड करो। सो लेट्स ट्राई टू ओवरराइड दैट। अब मुझे मेथड जो लिखी है दैट इज प्रोसेस, अब मैं यहां पर नंबर का स्क्वायर करके दे रहा हूं। सो दिस इज माय पेरेंट क्लास, दिस इज माय चाइल्ड क्लास। सो आई मूव टू क्रिएट प्रोसेसर स्क्वायर equal to new square. So what is this? Parent class reference, child class object. अब using that I'm going to call the method processing square, और आप यहां पर जो भी है square dot process, तो आपको यहां पर expected क्या आउटपुट है? 100। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज ऑलरेडी वी हैव सीन, दिस इज अ वेरी बिग प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस है।
यहाँ पर क्या दिक्कत है, अलग से क्लास बनाओ, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसका मेथड्स कॉल करो, दिस इज लेंदी प्रोसेस। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई करने के लिए, सो प्रोसेसिंग स्क्वायर यूजिंग ट्रेडिशनल वे। ठीक। अब मुझे इसी को और सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दैट, एनोनिमस क्लास। सो व्हाट इज एनोनिमस क्लास, एनोनिमस क्लास विद कोई नाम नहीं है उसका, तो ऐसा क्लास क्यों हम यूज करते हैं, कोड को और सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां पर हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे या क्या शॉर्टन करेंगे, यहां पर क्या क्या हो रहा है इन दिस एग्जांपल, हम सब क्लास अलग से क्रिएट कर रहे हैं और सब क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों लाइन को हम कंबाइन करेंगे, ये सब क्लास क्रिएशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे यूजिंग एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास की क्या खास बात है, वो हमेशा सब क्लास ही रहेगा। सो creating subclass of a functional interface using anonymous way। अब क्या करना पड़ेगा, कैन यू जस्ट हेल्प मी। अब मैं इसको क्यूब बनाता हूं, आई एम गोइंग टू क्रिएट प्रोसेसिंग क्यूब यूजिंग एनोनिमस। सो क्यूब डॉट प्रोसेस। अब हम क्यूब डॉट प्रोसेस, मेथड का नाम तो सेम ही रहेगा बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी सेम। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला स्टेप हटा के ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन और ये दोनों स्टेप मुझे एक साथ करना पड़ेगा। ठीक। अब क्लास कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंट्स ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये न्यू स्क्वायर, स्क्वायर तो पुराना वाला क्लास है वो भी हटाने, और यहां पर लिखना है हमें छोटा सा पार्ट, न्यू प्रोसेसर। नाउ हुज ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग, तो यहां पर क्यूब करेंगे, हम क्या करेंगे, क्यूब। तो यहां पर मैंने क्या किया, दो स्टेप कंबाइन किया, क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्लास क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, आर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेसर, किसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, एनोनिमस क्लास का। ये किसका बॉडी है, हुज ऑफ बॉडी दिस, एनोनिमस क्लास का बॉडी, सब क्लास का बॉडी है, दिस इज अ ओवररिडन मेथड। अब यहां पर आपने थोड़ा सा कोड कम कर दिया, क्या किया आपने, अलग सेपरेट क्लास बनाने के बजाय आपने क्या किया, अभी दोनों कंबाइन किया, थोड़ा और कम हो गया, दिस इज समथिंग लिटिल गुड। लेट्स ट्राई टू रन दिस। अब ऑलरेडी आपको थोड़ा हिंट आ रहा है कि इसमें, नाउ लुक एट दिस राइट हैंड साइड, क्या कर रहे हो आप बाय द वे, राइट हैंड साइड में एक सब क्लास बना है, इफ यू लुक एट दिस, ये पूरा पूरा एक बार देखो आप, ये वाला चीज क्या कर रहे हो आप राइट हैंड साइड में, एक क्लास डिफाइन किया, सब क्लास क्रिएट किया और फंक्शन इंटरफेस, उसके अंदर एक ही मेथड ओवरराइड कर रहे हो आप, क्लास डिफाइन किया, मेथड ओवरराइड किया, फिर उस पर्टिकुलर सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये आपने अलग अलग किया। अब यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक क्लास क्रिएट किया, एनोनिमस क्लास, दैट इज अ सब क्लास ऑफ फंक्शन इंटरफेस, एक मेथड ओवरराइड करी। ठीक। अब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, यहां पर मेथड ही तो लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप, मेथड ही तो लिख रहे हो अल्टीमेटली, मेथड की यहां पर बॉडी लिख रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये तो पता चल रहा है कि ये कौन सा इंटरफेस है, कौन सी मेथड होगी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड से पता चल रहा है। तो उन्होंने उन्होंने भी वही सोचा कि यार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी जावा 8 में जो लेटेस्ट फीचर है उसमें आपको क्या है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ अ फंक्शन इंटरफेस यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, सेम चीज आप कर रहे हो, लेकिन अभी नंबर ऑफ लाइंस आर नाउ शॉर्टनिंग। अब यहाँ पर मुझे बताओ, टू डू लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा का यूज करके हम क्यूब फाइंड करेंगे, प्रोसेसिंग क्यूब यूजिंग लैम्बडा वे, तो यहां पर भी हम ये रेफरेंस यूज करेंगे, सो लैम्बडा क्यूब डॉट प्रोसेस। अब यहां पर देखो, तो मैंने आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन क्यों यूज करते ये बताया था, व्हाई आर यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ फंक्शनल इंटरफेस टू मेक द कोड
concise, clear, and smaller. That is the understanding. And lambda expression is a function. Lambda expression is a function which does not have name, return type, x specifier, access modifier. Perfect. अब यहां पर मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से मुझे पता चल रहा है कि ये पेरेंट क्लास रेफरेंस है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सब क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर एक मेथड ओवरराइड होना चाहिए. कौन सी मेथड, इसके अंदर जो मेथड है वो यहाँ पर ओवरराइड होना चाहिए. तो उन्होंने भी वही किया. उन्होंने पहले तो ये न्यू कीवर्ड हटा दिया, प्रोसेसर ये भी हटा दिया. ये क्लास का बॉडी क्यों लिखना है, क्लास का बॉडी, क्योंकि एक ही तो मेथड होगा, तो वो भी हटा दिया. ओवरराइड ये भी हटा दिया. एक्सेस स्पेसिफायर हटा दिया. रिटर्न टाइप हटा दिया. मेथड नेम हटा दिया. अब उन्होंने क्या किया, ये मेथड का इनपुट पैरामीटर और मेथड बॉडी इन दोनों को कंबाइन किया एरो का यूज करके. अब यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं. आपको ये इंट टाइप देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो पता चलता है उसको. अब कितने इनपुट हैं, एक ही है, तो आपको ये पैरेंथेसिस भी लिखने की जरूरत नहीं. अगर एक से ज्यादा है तो पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा. तो यहां पर ये भी हटा दिया. बॉडी में कितना स्टेटमेंट्स है, एक ही है. एक से ज्यादा है तो आप कर्ली ब्रेसेस लिखो, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है. सो आई एम रिमूविंग दिस आल्सो. अब डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करें तो रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. अब आप देखो आपने क्या क्या किया. ये आपका मेथड का इनपुट पैरामीटर, ये मेथड बॉडी, जो इनपुट आया उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, उससे मिला आपको क्यूब. इज इट सिंप्लीफाइड नाउ? अब देखिए तो इफ समवन इज लुकिंग एट द फर्स्ट टाइम व्हाट ही विल अंडरस्टैंड. ये देखिए क्या समझ में आएगा उसको, कुछ समझ में आएगा? अब इसको समझने के लिए मुझे बताओ क्या क्या आपको पता होना चाहिए. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड नो. इनहेरिटेंस, पहले तो इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का सब क्लास से क्रिएट करते हैं. उसके बाद एनोनिमस क्लास क्या होता है, ट्रेडिशनल वे से सब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, और लैम्बडा एक्सप्रेशन. ये समझने के लिए आपको ये इतना सारा चीजें पता होना. मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ये इतना बेसिक आपको तब पता हो तब इसको समझ में आएगा आपको. अब मुझे बताओ जिसने उप्स की क्लासेस मिस करी होगी उसको कुछ समझ में आएगा ये लाइन, आज की क्लास उसको कुछ समझ में आएगा? नो. राइट. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मीन्स यू हैव कम फार फार फार, मतलब बहुत आगे आ चुके हो आप लोग को. अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है मतलब यू आर इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ. ठीक. I hope this makes sense यहाँ तक. So we'll try to create more subclasses. Now you will tell me how do I create. यहाँ तक तो क्लियर है. अब इसके आगे एक और तरीका है मेथड रेफरेंस, वो भी हम पढ़ने वाले. बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू क्रिएट some more examples. Now this time I want you to answer. Any questions so far? लैम्बडा एक्सप्रेशन, हाँ, फंक्शनल इंटरफेस में ही क्यों यूज होता है वो भी बताओ. सिंगली मेथड लिखना है हमें. तुम ही बताओ मुझे लैम्बडा एक्सप्रेशन क्यों एप्लीकेबल है ओनली फॉर फंक्शनल इंटरफेस. वाई? अगर दो मेथड होंगे तो सिमिलरली उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों मेथड को रैप करने के लिए एक क्लास लिखना पड़ेगा, दोनों मेथड को एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा. सो दैट इज नॉट गुड, राइट? इसके अंदर, हाँ, लेकिन वो गारंटी नहीं है, उसको भरोसा नहीं ना आपके ऊपर. आपने एक मेथड डाला लेकिन कल जाके दो डाल दिया तो. हाँ, जावास्क्रिप्ट अलग सिंटैक्स आता है वहां पर थोड़ा. आप ट्राई करो, नहीं होगा. अपने घर जाके ट्राई किया इसको, आज ट्राई करो फिर से, नहीं होगा. सब क्लास किसका बनेगा यूजिंग लैम्बडा?
ओनली फंक्शनल इंटरफेस, ओनली। ठीक, चलो। आपको जो मैंने आपको बताया था, यू नीड टू क्रिएट, you need to know what are the different functional interfaces are there available. ठीक, now runnable is already a functional interface. Runnable is already a functional interface, is already there. This is already defined. मैं इसको फिर से डिफाइन नहीं करूंगा, बिकॉज हाँ, तो ऐसे कुछ दिखता है फंक्शनल इंटरफेस रनेबल। अब मुझे बताओ, हाउ आर यू गोइंग टू राइट द लैम्डा फॉर दिस? आई वांट आंसर फ्रॉम दिस। हाउ आर यू गोइंग टू राइट लैम्डा फॉर दिस? रनेबल, आप रेफरेंस का नाम जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो, रनेबल। क्या लिखना है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये मेथड एज इट इज लिखो, मेथड ओवरराइड करना है। सिंपली क्या करना है, लैम्बडा लिख रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड कर रहे हो। अब ये मेथड का बॉडी में लिखना पड़ेगा, बट आपको ये थोड़ा कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से करना है, मेथड इनपुट पैरामीटर इसको ज्वाइन करना यूजिंग एरो, और लास्ट में आपको ये वाला। अब ये वाइड हटा दो, मेथड का नाम हटा दो। अब इनपुट पैरामीटर कुछ है नहीं, दैट्स फाइन। मेथड बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट होगा, तो ये भी आपका ऑप्शनल है। तो आप लिख सकते हो रनेबल implemented using lambda expression. Now how do I create runnable dot run? ये मैंने सब क्लास क्रिएट किया और उसका फिर मेथड कॉल कर रहा हूं। क्लियर? How do we create this? Now there is another example. Let's say I have predicate. If I go to predicate, you'll find this method test. ये मेरा predicate. Now I'm going to comment out this. ये आपको पता होना चाहिए, by the way. This is something you should know. हाँ, look at this. Now what is this definition? If you look at this, क्या करता है ये? रिटर्न क्या कर रहा है? बुलियन। मेथड का नाम टेस्ट है। इनपुट कोई भी टाइप का दे सकते हो। अभी के लिए टीटी यानी एनी टाइप ऑफ इनपुट यू कैन गिव टू द टेस्ट मेथड, वेदर इट इज इंटीजर, फ्लोट, कोई भी टाइप का आप इनपुट दे सकते हो, लेकिन रिटर्न क्या करेगा? बुलियन। नाउ आई वांट यू टू राइट अ प्रोग्राम दैट विल चेक इफ द नंबर इज, जो भी उसको इनपुट देंगे, इसको इनपुट हम देंगे क्या? नंबर। नंबर इवन है या ऑड है, ये प्रिंट करना है। उसके लिए मुझे आप प्रेडिकेट इंप्लीमेंट करके दो। सो प्रेडिकेट शुड रिटर्न ट्रू व्हेनेवर द नंबर इज बुलियन, सॉरी, इवन, और ये रिटर्न करना चाहिए फॉल्स इफ द नंबर इज ऑड। सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट दैट? ठीक है, प्रेडिकेट रेफरेंस लिखा। हाँ, हम्म, 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 चलो प्रेडिकेट कौन सा टाइप का इनपुट देने वाले हैं हम? इंटीजर। तो इसलिए मैं यहां पर उसको बोलता हूं कि हम इंटीजर देंगे तुम्हें। ठीक, क्या लिखो यहां पर? उसका रेफरेंस का नाम इज इवन। अरे यार, ये ऑलरेडी बता रहा है। हाँ, दैट्स फाइन। एआई मैं कमेंट आउट कर दो यहाँ पर। आप बताओ। हाँ, इज इवन। क्या लिखना पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा है? ये कॉपी करो,
अब बुलियन लिखना है क्या? नहीं। टेस्ट? नहीं। अब इनपुट क्या देने वाले हो? इनपुट का टाइप देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इनपुट क्या होगा? नंबर। सो आई विल जस्ट कॉल इट एज नंबर, कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब इसका बॉडी और ये चेक करना, तो इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? अब इनपुट कितने हैं? एक ही है, तो ये लिखने की जरूरत है? नो। अब इसके अंदर क्या लिखना है आपको? कैन यू टेल मी? रिटर्न कब ट्रू करना है आपको? रिटर्न क्या करना है? बुलियन ट्रू और फॉल्स। तो रिटर्न ट्रू कब करना है? ठीक है, तो टेल मी हाउ डू आई राइट दैट लॉजिक? नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, देन कितना ही लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे? कॉल करेंगे मेथड को। अब लॉजिक इतना ही है क्या? मेथड बॉडी इतना ही है क्या? हाँ बराबर, इतना ही है। इतना ही है। नंबर दिए आपने, लेट से 10। 10 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न वैल्यू कितनी बनेगी? ट्रू, तो वही वैल्यू रिटर्न होगी। 11 दिया तो 11 मॉड कितना आता है? 1। 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। तो फॉल्स वैल्यू जनरेट हुआ, दैट वैल्यू विल बी रिटर्न। कितना? एक लाइन के अंदर आपने इसको बता दिया। इज इवन डॉट टेस्ट, इनपुट दिया आपने लेट से 10, यहां पर इनपुट दे दिया 11। सो यहां पर फर्स्ट आपको ट्रू मिलेगा और यहां पर फॉल्स। इनपुट इज इवन टेस्ट फॉर 10, समझे? क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज फंक्शन इंटरफेस? व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन? व्हाई डू वी नीड लैम्बडा एक्सप्रेशन? हाउ डू वी राइट लैम्बडा एक्सप्रेशन? बहुत सिंपल है, आंख बंद करके आपको ये देखना है कि फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसी को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्या क्या हटाना है? मेथड का नाम, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और इनपुट पैरामीटर्स, मेथड का इनपुट पैरामीटर और बॉडी, इनको एरो से आपको ज्वाइन करना है, दैट्स इट। और लास्ट में सेमीकोलन। अगर एक ही इनपुट है तो राउंड पेरेंथेसिस भी हटा दो। अगर एक ही मेथड बॉडी में स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस भी हटा दो। रिटर्न स्टेटमेंट, आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, दैट ओनली विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न। समझे? मेक सेंस? So I will just give an example here itself. Easy? Now, if you understand lambda expression, the next concept is very simple. That is called as method reference. So by now you must be knowing what is method reference. At least एग्जाम वाला आंसर तो बोल सकते हो। क्या है मेथड रेफरेंस? ऑलरेडी ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स। अब आप तीनों को ऑब्जर्व करो, ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे, लैम्बडा एक्सप्रेशन वे। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? इन तीनों तरीकों को मैंने कहां पर लिखा था? यहां पर। अब तीनों तरीकों को आप यहां पर ऑब्जर्व करो।
इन तीनों को आप ऑब्जर्व करो एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट. लेट्स ट्राई टू. विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ मेथड रेफरेंस. अगर आपने तीनों को भी देखा होगा. सो ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस है. सेम एग्जांपल. ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन. अब तीनों तरीके में आपने क्या किया. यहां पर भी क्या किया, क्लास क्रिएट किया, मेथड ओवरराइड किया. यहां पर भी क्लास क्रिएट किया, मेथड ओवरराइड किया. आप खुद लॉजिक लिख रहे हो. और यहां पर भी क्या कर रहे हो आप, खुद लॉजिक लिख रहे हो. इन ऑल द थ्री केसेस, वेदर इट इज ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे और लैम्बडा एक्सप्रेशन, तीनों तरीके में आप क्या कर रहे हो, खुद लॉजिक लिख रहे हो. अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो लॉजिक आप लिख रहे हो वो ऑलरेडी कहीं और लिखा होगा. क्या बोल रहा हूं मैं. आप यहां पर पूरा स्क्रैच से लॉजिक लिख रहे हो, मेथड ओवरराइड कर रहे हो. बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो आप लॉजिक लिखना चाहते हो वो लॉजिक ऑलरेडी कहीं प्रेजेंट हो. वो लॉजिक ऑलरेडी कहीं प्रेजेंट हो. सो लेट्स से यहां पर मैं कोई मेथड, यहां पर भी आप लिख सकते हो, कहीं पर भी मेथड लिख सकते हो आप. सो आई एम राइटिंग अ पब्लिक स्टैटिक इंट प्रोसेस, और कोई भी लॉजिक स्क्वायर. ये मेथड है मेरा. ऑलरेडी एग्जांपल में बता रहा हूं कि ऑलरेडी ये प्रेजेंट है. ऐसा कोई हो सकता है. ठीक. ठीक, ये मेथड मेरे पास ऑलरेडी है. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं समथिंग कॉल्ड एज मेथड रेफरेंस. सो व्हाट इज मेथड रेफरेंस. वे ऑफ क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस. अब इतना तो समझ में आया आपको कि मेथड रेफरेंस इज अ वे टू क्रिएट सब क्लास ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. ठीक. अब ध्यान रखना है यहां पर, तो आप क्या करते हो यूजुअली, प्रोसेसर मेथड रेफरेंस इक्वल टू, आप खुद से यहां पर क्या लिखा आपने, लैम्बडा लिखा है. दिस इज व्हाट यू हैव रिटन है, लैम्बडा. ये लिखते हो, आप खुद लिखते हो यहां पर. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ मेथड डेफिनेशन. मुझे पता चला कि यार लॉजिक फिर से लिखने का मतलब नहीं है, ऑलरेडी कहीं और लॉजिक लिखा है. सो आई एम गोइंग टू सिंपली गिव रेफरेंस ऑफ दैट ऑलरेडी डिफाइंड मेथड. क्या करने वाला हूं मैं, ऑलरेडी जो डिफाइंड मेथड है उसका रेफरेंस. सो डेमो 3 मेथड रेफरेंस कोलन कोलन स्क्वायर. स्पेलिंग गलत हो गया क्या. सर हे स्क्वेअर आपण मेन मेथड मध्ये नाही लिहिली. ये मेथड क्या, हा. हाँ. चलो यहां पर लिख लेता हूं मैं, नंबर 1 एंड नंबर 2. ओके. ऊपर लिखा है क्या कहीं, हाँ. स्क्वायर स्क्वायर ना डुप्लीकेट हो गया हूँ. कस्टम ऑलरेडी डिफाइंड मेथड बोल सकते हो, ऑलरेडी डिफाइंड मेथड. नाम कुछ अलग दिया है क्या मैंने, दैट्स फाइन. सो आई एम टू क्रिएट अ क्लास ए. हाँ देखो यहाँ पर एक मैंने अलग से क्लास बनाया.
ए क्लास हाँ वाई इट इज नॉट क्रिएटिंग नंबर द्यावे लागतील का? क्या क्या नंबर द्यावे लागतील ना? एक मिनट मेथड का सिग्नेचर एक मिनट ये दो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है कैसे चलेगा व्हाट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझे क्या है ओके सो दिस इज ऑलवेज बैड प्रैक्टिस देखो यहां पर जब भी आप मेथड लिख रहे हो ये सिग्नेचर मैच होना चाहिए मेथड का व्हाट शुड हैपन सिग्नेचर कितना इनपुट है टाइप है ये मैच होना चाहिए सो दैट वाज मिसिंग आप लोग भी देखते रह गए वैसे ही सो हाउ मेनी इनपुट वी आर गिविंग ओनली वन सो लेट मी राइट अ मेथड नाउ इसी क्लास के अंदर लिख लेता हूं मैं सो पब्लिक स्टैटिक इंट कस्टम ऑलरेडी डिफाइंड मेथड बोल सकते हो ऑलरेडी डिफाइंड परफेक्ट सो व्हाट वाज रॉन्ग रॉन्ग क्या था आपका मेथड एक्सेप्ट कर रहा है एक इनपुट और आप दे रहे थे दो वाला सो दैट वाज समथिंग रॉन्ग सो डेमो 3 खत्म बात तो सिग्नेचर मैच होना मैंडेटरी है आपने इनपुट दे रहे हो एक और आप दे रहे थे यहां पर दो इसलिए गड़बड़ हो रहा था सो राइट नाउ आई हैव डन दिस क्लियरली कि जो मेरा प्रोसेस 10 दिया तो यहां पर भी आपको सॉरी ये अलग रन कर दिया मैंने समझे यहां पर भी आपको 100 आ रहा है सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप ट्रेडिशनल वे यूज करो एनोनिमस क्लास वे यूज करो या लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करो यहां पर क्या कर रहे हो आप खुद मेथड लिख रहे हो आप सो मेथड रेफरेंस इज अ सिंप्लीफाइड वे कि आपको फिर से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं होगी यहां पर क्या करोगे आप यहां पर ऑलरेडी मेथड जो डिफाइंड है उसी का रेफरेंस दोगे आप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड instead of me developing the method now I'm not going to develop the method once again because that is already there so I'm just going to give a reference of that already existing method that is a simple concept of method reference so can you tell me if I have to write a writer for this so what's the method reference आप बोल सकते हो इट इज वन ऑफ द जावा 8 फीचर जैसे आप एग्जाम में लिखते हो हाँ इट इज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि दिस इज जावा 8 फीचर आल्सो सो इसलिए आप बोल सकते हो इट इज ए जावा 8 फीचर अब ये क्या है व्हाट एग्जैक्टली दिस इज जावा 8 समझा आगे बताओ क्या है ये इट इज वन ऑफ द वे इट इज वन ऑफ द वे टू क्रिएट subclass of a functional interface मेक सेंस क्या है ये एक तरीका है जिसका यूज करके हम सब क्लास बना सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस का नाउ यहां कर क्या रहे हम पहले पास आपके पास तीन थे एक दो तीन तरीके थे जहां पर हम खुद मेथड डिफाइन कर रहे थे नाउ instead of defining the method once again defining the implementation of a किसका अरे किसका इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं आप instead of defining the implementation for
सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी कैन क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव रेफरेंस ऑफ ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे कोई आप एग्जाम में मतलब डाइजेस्ट आपको जो भी बुक्स होता है उसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर के लिए रेफर करो क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो मतलब फिर से वहां पर वो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, वो स्पेस सेव हो रहा है वहां पर, व्हाट दे आर राइटिंग रेफरेंस, दे आर गिविंग रेफरेंस टू अनदर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप जाओ क्वेश्चन नंबर 49, वो आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यू कम टू द फाइंडिंग द आंसर बट उसका आंसर कहीं और है, सो दैट इज जस्ट अ रेफरेंस वी आर गिविंग टू दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आंसर। तो यहां पर भी सेम ही है, instead of we defining the implementation for single abstract method, what are we doing, what are we doing here, we are giving reference to an already existing method। अब आपके पास कौन कौन सी टाइप की मेथड्स हैं, so we can give reference कौन सा टाइप का, to the static method, non static methods और constructor। एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैटिक मेथड हो सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड हो सकता है, या कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो आपके पास सिंटैक्स याद रखना है, स्टैटिक मेथड का रेफरेंस कैसे दोगे आप, हाउ आर यू गोइंग टू गिव रेफरेंस ऑफ अ स्टैटिक मेथड रेफरेंस, स्टैटिक मेथड हाउ इज कॉल्ड, perfect, so we write class name colon colon method name, class name colon colon method name। How do you call non-static methods, reference name colon colon method name। Now I want to give constructor reference, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के लिए क्लास नेम कोलन कोलन न्यू, ये कुछ नया है, what is this all concept about, instead of we defining the implementation for single abstract method, what are we doing, we are giving reference of already existing method। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड को हम रेफर कर सकते हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक मेथड को कैसे रेफर करोगे, क्या सिंटैक्स है, क्लास नेम कोलन कोलन स्टैटिक मेथड नेम, रेफरेंस नॉन स्टैटिक मेथड के लिए रेफरेंस ये रेफरेंस कोलन कोलन मेथड नेम, कंस्ट्रक्टर का class name colon colon new। So let's see this one more time। चलो ध्यान रखो यहां पर, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल इंटरफेस, सॉरी, ठीक, ये मेरे पास फंक्शनल इंटरफेस है, कैन आई कॉल दिस एज फंक्शनल इंटरफेस, सो दिस इज माय फंक्शनल इंटरफेस। कितनी मेथड्स हैं, एक ही मेथड है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सब क्लास, क्रिएट सब क्लास ऑफ नोटिफिकेशन सर्विस। तो कितने ऑप्शंस आपके पास, 4 ऑप्शन है।
ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस, लैम्बडा एंड मेथड रेफरेंस। हम सीधा सीधा अभी मेथड रेफरेंस पे जाते हैं। डू यू नीड ऑल दीज थ्री या डायरेक्टली लिखा तो भी चल जाएगा? तीनों क्लियर है आपको? ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस, लैम्बडा और लास्टली मेथड रेफरेंस। कैन यू शैल आई डायरेक्टली राइट दिस? ओके। नाउ यूजुअली अगर मुझे इसके लिए लैम्बडा लिखना पड़ता तो क्या करते आप? ये मेथड का इनपुट पैरामीटर और ये बॉडी, और यहां पर लिखते हैं आप, और कॉल कैसे करते हैं? नोटिफिकेशन सर्विस नोटिफाई, ऐसे करते हैं आप। लैम्बडा ऐसे लिखते हैं, एक ही लाइन है तो मैं यहां पर लिख लिया। ठीक, मेथड से मैं चेंज करता हूं। यहां पर जो इनपुट है, लेट्स से स्ट्रिंग मैसेज, हेलो, और जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? हम बस प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या किया हमने? क्या लिखा है? लैम्बडा हमारी मेथड क्या करती है? इनपुट एक्सेप्ट करती है, और जो इनपुट दिया वही हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज अ typical way of creating subclass using lambda expression. Now, can you see something? See something? Any? What is your lambda doing? What is your lambda doing? क्या करता है? अरे इनपुट लेके जो प्रिंट कर रहे हो, मेथड मेथड इनपुट है, जो भी इनपुट है उसको प्रिंट कर रहे हो, बस दैट्स इट। अब आपके पास ऐसा करने वाला सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है। वेयर इज दैट? आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। Now let's, क्या कर रहा है ये? So, हमारा पहले लैम्बडा क्या कर रहा था? इनपुट एक्सेप्ट कर रहा था और वही प्रिंट कर रहा था। क्या कर रहा है हमारा लैम्बडा? इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है और वही प्रिंट कर रहा है। बट ऐसे करने के लिए ऑलरेडी एक मेथड डिफाइंड है। वेयर इज दैट मेथड? प्रिंटल मेथड। सो प्रिंटल मेथड प्रिंट समथिंग, जो भी इनपुट दिया वो उसको प्रिंट करना, ये काम करती है। यस सर? नो? तो हमने यहां पर क्या किया? आई हैव गिवन रेफरेंस ऑफ प्रिंटलन मेथड। सो प्रिंटलन मेथड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? नॉन स्टैटिक मेथड है, तो आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। आउट तक कैसे पहुंचे? सिस्टम। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट नहीं, आउट कोलन कोलन नाउ। सो व्हाट इज दिस आउट कोलन कोलन? मेथड रेफरेंस। दिस इज गिविंग अ मेथड रेफरेंस। दिस इज मेथड रेफरेंस। तो कोलन यहां पर डॉट नहीं है, यहां पर कोलन कोलन है। सो दिस इज अ जावा 8 फीचर। देखो यहां पर, समझे? दोनों केस में हेलो आ रहा है। आपने देखा होगा कहां से कहां है हम। वहां पर एक पहले क्लास डिफाइन किया, मेथड ओवरराइड किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मेथड कॉल किया। यहाँ पर कितना है कोड? नंबर ऑफ लाइन्स आर डिक्रीज सो मच। अब मुझे बताओ, डज इट मेक सेंस टू अपग्रेड द वर्जन ऑफ जावा? जावा 7 का कोड और जावा 8 का कोड कितना फर्क होगा? कितना फर्क होगा? बहुत ज्यादा फर्क होगा। जावा 7 में क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन टू रिड्यूस दैट। मेक सेंस? मेथड रेफरेंस बोल पाओगे? चलो एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू आर क्लियर ऑन दिस।
ये पूरा इंटरव्यू मटेरियल है बाय द वे, आप जो भी पढ़ रहे हो ना आज, दिस इज समथिंग यू विल बी डिस्कस इन द इंटरव्यूज। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये जावा 8 का फीचर्स। Let's write this one more time. So I have an interface, let's say notifier, notification service. अब देखा यहाँ पर आई एम गोइंग टू राइट सर्टन मेथड्स, पब्लिक स्टैटिक void method 1, मेरे पास ये स्टैटिक मेथड है, मेरे पास एक नॉन स्टैटिक मेथड है, और मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर भी है। ठीक, क्या क्या मेरे पास, एक स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर। नाउ दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक, अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू क्रिएट अ सब क्लास using method reference. So giving reference to static method, क्या syntax है? Yes, class name colon method name, reference to non static method, reference colon method name, reference to constructor, reference नहीं, class name. So let's give me the first thing. बताओ. So notification service. So how do I write that? मुझे सब क्लास क्रिएट करना है बट यूजिंग मेथड रेफरेंस वे। हाउ डू आई क्रिएट, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्लास का नाम, परफेक्ट। व्हाट अबाउट दिस, क्या करना पड़ेगा, मेथड 2, बट मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, कौन से क्लास के मेथड कॉल कर रहे हो आप, कौन सी मेथड का रेफरेंस दे रहे हो आप, इस क्लास की ना, तो ऑब्जेक्ट भी इसी क्लास का होगा। समझे? लास्टली थर्ड, आई होप यू आर एबल टू मेक सेंस क्या कर रहे हैं हम। अब मुझे कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस देना है, तो यहां पर न्यू, now you can call simply the methods. तीनों तरीके से आपका आंसर आने वाला। समझे? यस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर नॉन स्टॅटिकच्या याच्यामध्ये पण आपण हेच घेतलंय ना, हाँ, सब जगह सेम ही लॉजिक है मेरा क्वेश्चन। हाँ, नॉन स्टैटिक के लिए क्या बोले, इथे हे न्यू क्लास ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये रेफरेंस है ना,
ऑब्जेक्ट घेतलाय का तू? हाँ, ऐसे भी चलेगा, अलग से क्रिएट किया मैंने, रेफरेंस कोलन कोलन मेथड टू, बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट लाइन मैंने उसको इनलाइन कर दिया। ओके ओके। दोनों तरीका, ये भी करो वो भी है। चलो आपके लिए सिंपल थोड़ा। क्लियर? चलो एक बार देख लो इसको, इफ यू आर एबल टू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज आस्क। If no questions, let's move to the next concept. So that is static methods. Static methods in interface. ये तो ऑलरेडी पता है आपको क्या है फीचर. What is this feature all about? It is from Java 8. From Java 8, we can define any number of static methods in an interface. Clear है ये everyone? And how do we call that method? So we can call static methods using क्लास नेम, यानी इंटरफेस का नाम रहेगा बस सिंपल इंटरफेस नेम डॉट मेथड नेम. आई होप दिस इज, मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस मच मोर. दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू कैन रिमेंबर कि जावा 8 से हम स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं. उसे कॉल कैसे करोगे आप? इंटरफेस का नाम से, दैट्स इट. कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस? नो. तो इसलिए हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग क्लास नेम. दैट इज क्लास नेम यानी इंटरफेस नेम. इंटरफेस ऑल्सो टाइप ऑफ अ क्लास. क्लियर? चलो वन लास्ट थिंग फ्रॉम द जावा 8. उसके आगे जो भी स्ट्रीम एपीआई है वी विल कवर दैट जब आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क कंप्लीट होगा दैट टाइम. सो डिफॉल्ट मेथड इन जावा 8. सो ये भी जावा 8 का फीचर है. सो व्हाट इज दिस फीचर अबाउट? क्या बोल सकते हो आप? व्हाट इज दिस डिफॉल्ट मेथड्स इन जावा 8? व्हाट इज दिस फीचर ऑल अबाउट? एक इंटरफेस के अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? क्या क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम टिल जावा 7 तक क्या लिख सकते हैं आप? बस अब्स्ट्रैक्ट मेथड. जावा 8 से क्या क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल्स कैसे है बाय डिफॉल्ट? Public, static, final. What about methods? Public, abstract. Public, abstract. Methods, static method and default method. Static method जितने चाहिए उतने लिख सकते हो आप. कैसे कॉल करोगे आप उसे? यूजिंग क्लास नेम. What about default methods? अब डिफॉल्ट मेथड क्यों दिया? Why this is particularly given in Java 8? इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड क्यों दिया? So before that, let's go to the idea and try to understand. अगर आपको इंटरफेस कॉन्सेप्ट पता है देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस. इट्स कोई भी इंटरफेस है, ठीक है? ये मेरा एक इंटरफेस है, ठीक? नाउ आई क्रिएटेड अ सब क्लास. हाउ कैन आई क्रिएट द सब क्लास? आई हैव n नंबर ऑफ वेज. दिस वन सब क्लास रिटर्न integer. How many subclasses are there?
How many subclasses we have? 3 subclasses I have created. Now I wake up tomorrow and say, let's say process 2. What is happening? Now like that I have 1 CR subclasses. कितने subclasses है? 1 CR. तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? कन्फ्यूजन। हाँ अरे कंफ्यूजन कहा हुई, कंफ्यूजन है या किसको, तुमको कंफ्यूजन है, किसको कंफ्यूजन है? वैभव, हु इज कंफ्यूज्ड? यू आर कंफ्यूज, जावा कंफ्यूज्ड, कौन कंफ्यूज है? जावा हे पॅरामीटर्स मुळे, किसके लिए कंफ्यूज है? मेथड साठी। अरे यार, हु कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस? हाँ बराबर, क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। किसे ओवरराइड करना पड़ेगा? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फंक्शन इंटरफेस नाउ, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल इंटरफेस। इसमें क्या है दिक्कत? कितनी मेथड्स है? 2 है। ओवरराइड कितनी करी है? अरे कितनी ओवरराइड करी है हमने मेथड? एकच मेथड ओव्हरराइड केली। एक ही मेथड ओवरराइड करी है, राइट? अब चलो लैम्बडा में छोड़ के इसको थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है। लैम्बडा, चलो लैम्बडा तो आपको पता है कि ओनली वर्क्स फॉर फंक्शनल इंटरफेस। अब मेरा ये N2 N3 ये तो समझ में आ रहा है। सो हर एक सब क्लास में मैंने कितनी मेथड्स ओवरराइड करी है? कैन यू टेल मी? एक ही तो करी है, हर एक सब क्लास में एक ही मेथड ओवरराइड करी है। ठीक, अब मेरे पास ऐसे 1 CR सब क्लासेस है, यहां तक समझे? Now, tomorrow, some junior developer joined and he did something like this. Process 2. So, what is happening? Now, you have to help that developer. One CR subclasses है, कितने? 1 CR subclasses है, और सब में आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हाँ सारे कंपाइल टाइम एरर आएंगे। अब ये टेक्निकली ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। 1 CR क्लासेस में मुझे मेथड ओवरराइड करना है तो कितना टाइम जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। कल जाके और भी सब क्लासेस बढ़े तो उसमें भी और टाइम जाएगा। सो देयर इज ह्यूज एफर्ट्स, अदरवाइज माय क्लासेस विल ब्रेक, अदरवाइज माय ऑल क्लासेस विल ब्रेक। तो ये तो नहीं कर सकते अभी 1 CR क्लासेस में हम ओवरराइड। अब मैंने मेथड, नई वाली मेथड क्यों इंट्रोड्यूस करी? व्हाई हैव क्रिएटेड इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथड? क्योंकि मुझे ये मेथड कुछ सब क्लासेस में चाहिए, बट सारे सब क्लासेस में नहीं चाहिए ना। अब यहां पर मैंडेट क्या हुआ? व्हाट इज द मैंडेट? मैंडेट यहां पर जो भी सब क्लास है सबको ये मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। समझी व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम क्या है अभी ऑनलाइन? मेथड ओव्हरराइड करायची सेकंड वाली। If I introduce a method inside a interface, new method inside an interface, then all my subclasses will break, all my subclasses will break. So if you don't want to break all of these classes but still we want to introduce a new method, method तो override करना है but मेरे classes भी break नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? नया मेथड तो इंट्रोड्यूस करेंगे ही लेकिन क्लासेस भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्लासेस भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया। व्हाट इज डिफॉल्ट मेथड भूषण? भूषण हाँ, व्हाट आर डिफॉल्ट मेथड्स? हाँ हाँ ठीक है, आगे उठाओ। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी क्या है? बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी
लेकिन डिफॉल्ट मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये क्लासेस ब्रेक हो रहा है, क्यों ब्रेक हो रहा है? एम्बिग्यूटी। सेम मेथड कॉल कर रहे हैं। कौन सी? कॉल ही नहीं कर रहे आप। ये क्या है? ये प्रोसेस टू, दोनों मेथड का नाम अलग है। तो इसमें कितनी मेथड ओवरराइड करी है? एक। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? इंटरफेस दो मेथड है ना इधर। फंक्शन इंटरफेस में एक ही मेथड लिख सकते हैं भैया, फंक्शन इंटरफेस नहीं है, नॉर्मल इंटरफेस है। सब क्लास में कॉल कर सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड छोड़ दो अभी, ये बताओ ये क्या है? अरे फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, वो नॉर्मल है। ओवरराइड की है कितनी? एक ही है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? ये कंपाइल टाइम एरर क्यों आ रहा है फिर? भूषण बोलेगा मेरे को पकड़ लेते, कल से लेट आऊंगा। इसमें क्या है? आप बताओ। दूसरी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी नहीं? करनी पड़ेगी ना। ये सब क्लास है और ये, हाँ। तभी बताओ फिर डिफॉल्ट मेथड। अब मेरी ये नई मेथड मैंने इंट्रोड्यूस करी। परफेक्ट। तभी क्या है कि अगर मैं नई मेथड इंट्रोड्यूस करता हूं तो मेरे सारे सब क्लासेस ब्रेक हो जाएंगे। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? नया मेथड भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए और मेरे क्लासेस भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो इसलिए जावा 8 में क्या किया, उन्होंने बोला कि यार यहाँ पर बॉडी देंगे इस पर्टिकुलर मेथड को, तो व्हाट विल हैपन? इंस्टेंस मेंबर्स आर नॉट अलाउड। तो यहां पर बोल दिया मैंने डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट लिखने से क्या हुआ? डिफॉल्ट लिखने से क्या हुआ? आर माई क्लासेस गोइंग टू ब्रेक नाउ? आर माई क्लासेस गोइंग टू ब्रेक? So this is my default method in interface. So what is the default method in Java 8? It is a method just like instance method, but with default keyword, with method body, with method body. So why this is given? ठीक है, अभी डिफॉल्ट मेथड दिखता कैसे है? एग्जैक्टली सेम एज इफ योर इंस्टेंस मेथड विद डिफॉल्ट कीवर्ड। अब ये दिया क्यों? So if you introduce a new abstract method in an interface, then subclasses will break. To avoid that, to achieve backward compatibility, default method is given. समझे? So what is this? It is Java 8 feature that you know. It is a method, कैसी method? Which is defined in an interface with default keyword and method body. How are you going to write this? How you can write? This is your default method. अब क्वेश्चन होगा कि ये क्यों दी है, वाई इट इज गिवन? वाई वाले क्वेश्चन आपका, वाई इट इज गिवन? आप टेक्निकल भाषा में ऐसे बोल सकते हो, इट इज प्रोवाइडेड टू अचीव बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। अब वो पूछ सकता है व्हाट इज बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। अब आपको तो उसको, अगर सीनियर डेवलपर हो तो वो ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बट अगर और आपको ड्रिल डाउन करना है तो ही विल आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, व्हाट ब्रेक्स, राइट? सो because of default method what happens? So default methods
अलाउज अस, किसके लिए अलाउ करते हैं, टू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स inside an interface without breaking subclasses, without breaking subclasses. अब एक और चीज ध्यान रखना, आप ये डिफॉल्ट मेथड कहाँ लिख सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हो क्या, नो. So default methods can be defined only inside the interface. तो ध्यान रखना ये, दिस इज समथिंग लॉट ऑफ पीपल गेट मिस्टेक विद दिस. कहां पर लिख सकते हो आप, इंटरफेस के अंदर, नॉट इनसाइड द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉट इनसाइड द कॉन्क्रीट क्लास. अब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो आप कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते हो, कॉन्क्रीट क्लास में कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट यहां पर ये चीज अलाउड है, समझे. नाउ लेट्स लुक एट दिस. यहां तक क्लियरिटी है. Why are we using default method? Why default method concept is introduced? अगर आपको पता है कि डिफॉल्ट मेथड नहीं है, अगर मैं नया मेथड इंट्रोड्यूस करूं तो क्या होगा, सब क्लासेस विल ब्रेक. ये तो क्लियर है आपको, वाई वाला क्वेश्चन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाई इट इज, बिकॉज डिफॉल्ट मेथड आपको अलाउ करता है कि नया मेथड इंट्रोड्यूस करना विदाउट ब्रेकिंग सब क्लासेस. अब इसका प्रॉब्लम भी है एक. व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, एम्बिग्यूटी भी हो सकता है. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द एम्बिग्यूटी. So I have this interface I1 and I2. वहां पर भी मेथड है M1 और यहां पर भी M1. देखो यहां पर, सो दो इंटरफेसेस है मेरे पास, दोनों में भी सेम मेथड है. I have the same signature. Now I'm going to create this class, let's say child class implements I1 comma I2. So what is the problem now? Child equal new child dot m1. अब child dot m1 किसकी मेथड कॉल करेगा, इसके पास तो दो इंप्लीमेंटेशंस है. Child class got two implementations, one from I1, one from I2. He is now confused which particular implementation to use. समझे, what is the problem? Child class is implementing I1 and I2, दो इंटरफेसेस उसने इंप्लीमेंट किया. अभी दिक्कत क्या है, सेम आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, सेम आपका मल्टीपल है. विच मेथड टू एक्सेस. अब जावा 8 में इसको कैसे फिक्स किया, जावा 8 में कैसे फिक्स किया. अब मुझे बताओ, मेथड इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एज वेल एज इन चाइल्ड क्लास, व्हाट विल हैपन. किसकी मेथड कॉल होगी, चाइल्ड क्लास की. तो उन्होंने भी वही किया. उन्होंने बोला कि अगर आपके पास सेम डिफॉल्ट मेथड है इंटरफेस में, तो उस केस में तुम क्या करो, उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करो, क्योंकि सिग्नेचर सेम है यहां पर भी यहां पर भी, तो मेथड ओवरराइड करो. अब ओवरराइड करने के बाद मुझे बता, मेथड किसकी कॉल होगी, चाइल्ड क्लास की. अब चाइल्ड क्लास के पास ऑप्शन है, एक तो पूरा नया लॉजिक लिखो, या इंटरफेस 1 की मेथड कॉल करो, या इंटरफेस 2 की मेथड कॉल करो. और आपको सही है, दोनों का मेथड कॉल करो. आपके पास दोनों ऑप्शन है. सो दिस इज हाउ वी रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी. दिस हाउ वी रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी. क्या करते हो आप, इफ द डिफॉल्ट मेथड इज प्रेजेंट इन बोथ इंटरफेसेस,
तो चाइल्ड क्लास कितने इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है? दो, दोनों में भी डिफॉल्ट मेथड है। अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि किसकी M1 मेथड कॉल करूं, I1 की करूं या I2 की करूं? तो क्या सोल्यूशन है इसका? जो भी कॉमन मेथड है उसको ओवरराइड करो, और ओवरराइड करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, पूरा नया लॉजिक लिखो, या I1 या जो भी इंटरफेस उसकी मेथड कॉल करना है, दैट इज अप टू यू। सो दिस हाउ वी रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी। समझे? सो हाउ टू रिजॉल्व default methods default methods ambiguity. So how are you going to resolve that in subclass? बहुत सिंपल है। तो ambiguity कब आएगी? when there will be ambiguity if same default method is present in multiple interfaces, and those interfaces क्या किया? Interfaces are implemented by a subclass। क्या बोल रहा हूं मैं? If same default method is present in multiple interfaces and those interfaces are implemented by subclass, तो क्या करना पड़ेगा? Then we have to override the default method। कौन सी? default method। अब मुझे पता है डिफॉल्ट करने के बाद क्या होगा, किसकी मेथड कॉल होगी? मेथड इज प्रेजेंट इन पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड, तो कॉल किसकी होगी? चाइल्ड। अब जो ओवररिडन मेथड है उसमें से आप क्या कर सकते हो? आप तो फ्रॉम ओवररिडन मेथड क्या कर सकते हो आप? वी कैन राइट लॉजिक। किसका? न्यू लॉजिक लिख सकते हो आप, न्यू लॉजिक, और कॉल किसकी मेथड? कॉल दी इंटरफेसेस डिफॉल्ट मेथड। क्या सिंटैक्स है कॉल करने के लिए? इंटरफेस नेम कोलन सुपर कोलन डिफॉल्ट मेथड नेम, दैट्स इट। याद रहेगा? क्या क्या आपने, यहां पर भी I1 है आपका, I2, और ये आपका चाइल्ड। ये सब क्लास है किसका? I1 एज वेल एज I2। यहां पर भी डिफॉल्ट मेथड है, यहां पर भी डिफॉल्ट मेथड है। सो बेचारा हो गया कंफ्यूज, तो क्या करना पड़ेगा? सो व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू ओवरराइड। और यहां पर क्या करना है आपको? आपके पास ऑप्शन है, न्यू लॉजिक लिखो, I1 डॉट सुपर डॉट डीएम, या I2 डॉट सुपर डॉट डीएम। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, या आप नया लॉजिक लिख सकते हो। दिस हाउ वी रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी इन डिफॉल्ट मेथड्स। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो पुष्कर एक बार फटाक से बताओ क्या क्या जावा 8 फीचर्स तुम्हें पता है? हम्म
लैम्बडा वे, सो हमने अभी तक जावा 8 के क्या क्या फीचर्स देखे। हाँ, तो व्हाट आर द जावा 8 फीचर्स यू नो, अगर आपको पूछा डू यू नो जावा 8 फीचर्स, आप बोल दो आई नो। इधर गए ये। सो व्हाट आर द जावा 8 फीचर्स, स्टार्ट करो फंक्शनल इंटरफेस। ठीक, अब उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस, डिफॉल्ट मेथड्स इन एन इंटरफेस, और क्या इसके बाद लैम्बडा एक्सप्रेशन। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज करके क्या कर सकते हो आप, फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट कर सकते हो ओनली, देन मेथड रेफरेंस, ये कुछ है। और ये हमने अभी तक कंप्लीट किया है, वी हैव कंप्लीटेड दिस फीचर्स। अरे क्या हो गया इसको, so we have completed this, so there are two more, optional and stream API. So these are something we will cover once we know little bit about collection, so that time we will cover this. तो अगर इंटरव्यू में आपको पूछे तो ये फीचर्स बताना कि यू नो दैट। ठीक, फिर एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर डेप्थ में जाएगा, बोल पाओगे ना? परफेक्ट। नाउ व्हाट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे? 15 predefined functional interfaces with method signature, ये मुझे चाहिए कल। ठीक, प्लस 15 and their subclasses using traditional way, anonymous class way, lambda expression way, क्या करना है आपको? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे किए हैं। 15 जो भी सब क्लासेस फंक्शनल इंटरफेसेस है उसका लिस्ट डाउन करो, उसके अंदर क्या मेथड है वो सिग्नेचर, और इन सब का इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखना है। ठीक, ट्रेडिशनल वे लिखो, एनोनिमस, लैम्बडा एंड मेथड रेफरेंस, इन सब के लिए इम्प्लीमेंटेशन लिखने का ट्राई करो। चलो थोड़ा कम कर देता हूं मैं, 10। ठीक, हो जाएगा। अगर इतना भी कर लिया तो यू विल बी हैंड्स ऑन विद द मोस्ट ऑफ द फीचर्स, कर पाओगे ना? परफेक्ट। सर यानी कि उनका ना